So moving on, so Dr. Sabha in his talk just touched in Nea Pakistan we are using myocardial strain more and more. So to teach us about the basics and clinical aspects of myocardial strain, we have our presenter, and to me he is the teacher of teachers. He has our next presenter. He has done his FCPS in medicine, then FCPS in cardiology, and then he has done his echo, nuclear, and cardiac CT boards. He is the program director of adult cardiology as well as cardiac imaging fellowship program at AKUH, and as well as he is the director of nuclear and echo lab. So please welcome Dr. Fateh Ali Tipu. थैंक्स रहमान फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई होप उसको सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली इट्स द मायोकार्डियल स्ट्रेन ऑन एकोकार्डियोग्राफी. इट्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द क्लिनिकल एप्लीकेशंस. सो सिस्टोलिक फंक्शन के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छा सभा ने बता दिया. So the parameters which are used for the assessment of systolic function on echo are ejection fraction, and you all know about the ejection fraction. It's a very has a very robust data on ejection fraction, और जितनी guidelines हैं तमाम चीज़ों पे ejection fraction ही use होता है अभी तक. उसके अलावा the other parameters which are commonly used are fractional shortening of the LV, the stroke volume, as well as the systolic tissue velocity of the mitral annulus, and as well as the mitral annular plane systolic excursion. But the problem is that कि ये जो हमारे conventional echo methods हैं, they are actually direct measures of the myocardial systolic performance. कोई भी इनमें से ये सब indirect measures हैं, direct नहीं है. So ventricular geometry can affect the analysis from conventional methods. So there is a need of a way which can actually determine the direct quantitative myocardial performance, and which can also assess the regional myocardial function, and which can actually evaluate the LV function independent of ventricular geometry. So in this context, actually myocardial performance emerged as the quantitative method of direct myocardial performance. So myocardial strain है तो नया मेथड, एंड बहुत सेंसिटिव मेथड भी है, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ यही नहीं पता हो कि एक्चुअली स्ट्रेन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट और बिगिन विद द स्ट्रेन. सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड इट इज इक्वल टू द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ अ डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. सो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका स्ट्रेन हम ले रहे हैं, तो उसकी जो डिफॉर्म्ड लेंथ है उसमें से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे. तो L is the deformed length of the object minus the original length, which is L naught, and this would be divided by the original length. So this would give you the strain. तो एक तरह से ये हो गया कि strain एक deformation का measure है. इसको और further यहाँ पर आपको explain कर देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए. तो यहाँ देखें एक spring है यहाँ पर आपके सामने. ये एक spring है, इसकी एक length है L naught. इस spring को आपने compress किया, इसकी length L हो गई. अब ये जो डिफॉर्मेशन हुई है इसको आप मेजर किस तरह करेंगे? सो दिस डिफॉर्मेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मेशन इज एक्चुअली द स्ट्रेन, और स्ट्रेन को मेजर करने के लिए स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू L, विच इज़ द डिफॉर्म्ड लेंथ, माइनस द L नॉट विच इज़ द ओरिजिनल लेंथ, एंड डिवाइडेड बाई L नॉट. ठीक है. सो इट्स वेरी क्लियर नाउ कि आपने डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट की जो डिफॉर्मेशन हुई है उसकी डिफॉर्मिटी को जो आप मेजर कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड को, दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रेन. और मेजर करने का सिंपल तरीका है कि डिफॉर्म्ड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. थोड़ी सी एग्जांपल से आपको समझा देते हैं. तो बेसिकली अगर जो है ना किसी कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और आपने उसको स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर. तो स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू डिफॉर्म्ड लेंथ 2 minus the original length 1 divided by the original length, that is 1. So that would be 1, which would be 100%. So this would be positive. So अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप खींच के लंबा कर रहे हैं तो उसकी जो
स्ट्रेन निकलेगा दैट वुड बी पॉजिटिव वैल्यू। एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आपने उसको कंप्रेस किया और उसकी नाउ लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर। सो स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू डिफॉर्म्ड लेंथ 1 माइनस द ओरिजिनल लेंथ एंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, दैट वुड बी इन माइनस। सही है, तो ये -1 और -100% आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जब कोई ऑब्जेक्ट जो है छोटा हो रहा है तो उसकी जो डिफॉर्मेशन हो रही है, जो स्ट्रेन हो रहा है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, जब वो स्ट्रेच कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी पॉजिटिव। और अगर जो ओरिजिनल लेंथ है उतनी ही आपकी डिफॉर्म लेंथ भी है तो इसका मतलब स्ट्रेन 0 है, कोई स्ट्रेन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो हार्ट बनाया है वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है और वो अपना काम शुरू करता है आपके पैदा होने से पहले, फीटल लाइफ में, एंड उस वक्त बंद होता है जब हम मर रहे होते हैं। सो बेसिकली वो इतना सिंपल नहीं है। सो जो मायोकार्डियल स्ट्रेन है, जो मायोकार्डियल डिफॉर्मेशन है, वो भी इतना सिंपल नहीं है कि एक स्प्रिंग की तरह से सिंपल, जैसे मैंने आपको बता दिया, बट उससे आप समझ सकते हैं। बट एक्चुअली द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम अंडरगोज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। और ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल डिफॉर्मेशन हो रही है उसको सिंपल करने के लिए आप यूँ समझ लें कि 3 डायरेक्शंस हैं। वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल, द अदर इज़ द सर्कमफ्रेंशियल। सो लॉन्गिट्यूडनली एलवी छोटा हो रहा है, सर्कमफ्रेंशियली एलवी छोटा हो रहा है, एंड रेडियल स्ट्रेन एज वेल एज। सो रेडियल में क्या हो रहा है, थिकनिंग हो रही है। सो लॉन्गिट्यूडनल में शॉर्टनिंग हो रही है तो दैट वुड बी द नेगेटिव वैल्यू, सर्कमफ्रेंशियल में शॉर्टनिंग हो रही है तो दैट वुड बी द नेगेटिव वैल्यू, एंड रेडियल में थिकनिंग हो रही है तो दैट वुड बी द पॉजिटिव वैल्यू। तो 3 तरह के स्ट्रेन हो गए, एक क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हो गया सर्कमफ्रेंशियल और तीसरा हो गया रेडियल। So the longitudinal strain denotes the shortening of the LV along its long axis. The circumferential strain depicts reduction in the circumference of the LV cavity during the cardiac cycle, and the radial strain denotes the thickening of the LV along its radius. But interestingly, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती. In addition, the LV also undergoes rotation around its long axis. So होता क्या है, apex rotates in the anti-clockwise direction during systole, while the base rotates in the clockwise direction, and this is called the twist. तो ये नहीं है कि सिर्फ जो है लॉन्गिट्यूडनली छोटा हो रहा है हार्ट, सर्कमफ्रेंशियली छोटा हो रहा है, बल्कि उसमें ट्विस्ट भी हो रहा है। जिस तरह से कपड़े को आप निचोड़ते हैं कि बेस पे से क्लॉकवाइज हो रहा है और एपेक्स पे से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मायोफिब्रिल्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में अरेंज हुए हुए और वो सब मिलके ये डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन हम ट्विस्ट को तो मेजर नहीं करते, हम जो मेजर करते हैं वो जो इनिशियल आपको 3 स्ट्रेन्स बताएं उनको मेजर करते हैं। और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल मायोकार्डियल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझना, जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल से आपको समझाया है, दैट्स वेरी इजी। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनली ये शॉर्टन हो गया, तो आपने इस तरह से स्ट्रेन निकाल लिया। इसका जो यूनिट होगा दैट वुड बी इन परसेंटेज एंड द वैल्यू वुड बी इन नेगेटिव। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेन और स्ट्रेन रेट में क्या फ़र्क है। तो द स्ट्रेन एक्चुअली कैन नॉट टेल यू हाउ लॉन्ग द डिफॉर्मेशन टेक्स। हो सकता है कि डिफॉर्मेशन 1 सेकेंड में हो जाए और हो सकता है कि ये इट विल टेक अ ईयर। तो जो रेट, स्ट्रेन रेट क्या है, ये आपको रेट बता रहा है कितने रेट पे डिफॉर्मेशन एक्चुअली हो रही है। तो इसको आप एग्जाम्पल से इधर देख सकते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिफॉर्म्ड हो रहे हैं, लेकिन एक की डिफॉर्मेशन हो रही है स्लो और एक की डिफॉर्मेशन हो रही है फास्ट। तो यहाँ जो चीज़ आ रही है दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रेन रेट। तो ये स्ट्रेन रेट इज़ एक्चुअली टाइम के साथ आप कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है वो आप बताते हैं, दैट इज़ स्ट्रेन रेट। अब मेजर किस तरह से करेंगे, मेजर करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, वन इज़ द टिश्यू डॉपलर इमेजिंग एंड द अदर इज़ द स्पेकल ट्रैकिंग इमेजिंग। सो इनफैक्ट इनिशियली जैसे सबा ने बताया था, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था मायोकार्डियल स्ट्रेन तो टिश्यू डॉपलर इमेजिंग से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ द स्पेकल ट्रैकिंग फॉर मेजरिंग द मायोकार्डियल स्ट्रेन। टिश्यू डॉपलर से कैसे करते थे, टिश्यू डॉपलर में 2 डिस्क्रीट पॉइंट्स और मल्टीपल पॉइंट्स आर एक्चुअली कंपेयर्ड विद ईच अदर, और वहाँ की आप वेलोसिटी ले लेते हैं और इन वेलोसिटीज से आप निकाल लेते हैं कि वो वेलोसिटी के डिफरेंस से आपको पता चलता है कि कितने इतने टाइम के बाद वो वाला सेगमेंट किस जगह पे होगा, तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और उससे जो है आप स्ट्रेन निकाल लेते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल मायोकार्डियल स्ट्रेन इस तरह से आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए ऑन द मायोकार्डियम
एंड हर एक पे टिश्यू डॉपलर से वेलोसिटीज़ निकाल ली, और इन वेलोसिटी के डिफरेंस से एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन एज वेल एज द स्ट्रेन रेट। सो टिश्यू डॉपलर एक्चुअली क्या करता है, टिश्यू डॉपलर वेलोसिटी लेता है और इस वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता है, और इस डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेन निकल के आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, और इसी वेलोसिटी से स्ट्रेन रेट भी निकल के आ सकता है। So this is one method of measuring the strain. There is another, or which is the commonly used method nowadays, is the speckle tracking. Speckles क्या होते हैं? Speckles are small dots or groups of myocardial pixels that are created by the interaction of ultrasonic beams and the myocardium, and they are actually considered the acoustic finger point for that region. So speckle tracking echocardiography software identifies these speckles and then tracks them frame by frame. तो इसको आपको तस्वीर से समझा देते हैं बेसिकली आगे। सो दीज आर द डिफरेंट स्पेकल्स। तो ये जो मायोकार्डियम हैज़ मैनी यूनिक स्पेकल पैटर्न्स एंड दीज रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकल्स कैन बी ट्रैक्ड एज दे मूव थ्रू द कार्डियक साइकिल। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आपने वेलोसिटीज़ ली थी, यहाँ पर आप एक्चुअल लोकेशन ले रहे हैं डिस्क्रीट मायोकार्डियल सेगमेंट की, और फिर वहाँ से आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टिश्यू डॉपलर में आपने वेलोसिटीज़ ली थी, यहाँ पर आपने बहुत सारे स्पेकल्स के साथ आपने उनका डिस्प्लेसमेंट ले लिया कि वो एक पॉइंट कहाँ पर मूव कर रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट को आपने स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, और उससे आप स्ट्रेन रेट भी निकाल सकते हैं और उसको टाइम इंटीग्रल करके वेलोसिटीज़ भी निकाल सकते हैं। अब दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क है? अभी तो आजकल तो स्पेकल ट्रैकिंग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, टिश्यू डॉपलर इतना यूज़ नहीं करते, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। बेसिक आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर स्पेकल ट्रैकिंग करते हैं तो स्पेकल ट्रैकिंग एंगल इंडिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पर कोई एंगल का रोल नहीं है, छोटे छोटे स्पेकल्स हैं, उनको आप ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आप वेलोसिटी नहीं ले रहे, कोई आप कर्सर नहीं डाल रहे वहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एंगल डिपेंडेंसी नहीं है। बट द टिश्यू डॉपलर इज़ बेसिकली एंगल डिपेंडेंट, एंड यहाँ पर चूँकि बहुत छोटे छोटे आप स्पेकल्स ले रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ बेटर इन केस ऑफ स्पेकल ट्रैकिंग, वाइल इज़ लिमिटेड इन केस ऑफ टिश्यू डॉपलर इमेजिंग। जो स्पेकल ट्रैकिंग से आप लेते हैं मायोकार्डियल परफॉर्मेंस इंडेक्स और मायोकार्डियल स्ट्रेन, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू टिश्यू डॉपलर इमेजिंग विच इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। बट यहाँ पर चूँकि आप वेलोसिटीज़ ले रहे हैं तो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ टेम्पोरल रेजोल्यूशन टिश्यू डॉपलर इमेजिंग की बहुत अच्छी है कंपेयर टू द स्पेकल ट्रैकिंग एकोकार्डियोग्राफी। उसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये इमेज रेजोल्यूशन। अगर इमेज रेजोल्यूशन आपकी अच्छी नहीं है तो स्पेकल ट्रैकिंग अच्छा नहीं हो सकेगा। तो इमेज रेजोल्यूशन इज़ हाई रेजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पेकल ट्रैकिंग। यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी का इतना इशू नहीं होता है। Another thing which is important in speckle tracking, there is lower inter-observer variability in case of speckle tracking. So nowadays, most of the strain imaging is done with the speckle tracking. अब सवाल ये कि क्यों करें? EF तो हम कैलकुलेट हर एक का कर लेते हैं, तो करना क्यों चाहिए? तो clinically LVEF appears to be the most relevant parameter for assessing the LV function. एक पानी देंगे थोड़ा सा। सो बेसिकली जैसे सभा ने बताया कि LVEF तो कर ही सकते हैं ना, तो स्पेकल ट्रैकिंग की या जो है स्ट्रेन इमेजिंग की ज़रूरत क्यों है? तो बेसिकली क्या है कि LVEF है तो बहुत रोबस्ट पैरामीटर, लेकिन इसके साथ इसकी सेवरल लिमिटेशंस हैं। इट प्रोवाइड्स ओनली एन इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन। ये डायरेक्ट मेजर नहीं है, जबकि जो आपका स्ट्रेन है दैट इज़ द डायरेक्ट मेजर। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है इसके साथ वो ये है कि देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंडेंट है EF। So EF is readily influenced by a number of factors including the loading conditions, and LVEF is not sensitive enough to detect the minor changes in the contractile function and cannot detect the subclinical myocardial damage. So if the myocardial damage is very subclinical or subtle, तो हो सकता है कि आपको जो है EF की फॉर्म में वो नज़र ना आए। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं समटाइम्स बहुत नॉन STMI है, छोटा सा हुआ, लेकिन EF पे कोई डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव मार्कर नहीं है EF, और वो बहुत सटल सी चेंजेस को पिक नहीं कर सकेगा।
However, the strain imaging offers a means to directly quantify the extent of myocardial contraction as opposed to EF, and it is more sensitive and pick up the myocardial dysfunction before the LVEF goes down. So इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो ये डायरेक्ट मेजर है, तो ये लोडिंग कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता, और दूसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये बहुत स्मॉल चेंजेस को भी पिक कर लेता है कंपेयर टू द EF. EF जो है लार्जर चेंजेस को पिक करेगा. तो अभी EF अगर रिड्यूस नहीं भी हुआ है तब भी आपका स्ट्रेन रिड्यूस हो सकता है. सो हाउ टू यूज़ मायोकार्डियल स्ट्रेन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. अब ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि जी मायोकार्डियल स्ट्रेन होता क्या है और उसको करते किस तरह से हैं, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं, लेकिन ये कि उसको यूज़ किस तरह से करें. तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेन तो 3 मेन टाइप्स के हैं, लेकिन अमंग द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड. क्यों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम यूज़ करते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को या रेडियल स्ट्रेन को प्रैक्टिकली इतना यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न है बिकॉज वी नो द स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज़ एंड रेंजेस फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और उसके नॉर्मल रेंजेस वेल डिफाइंड हैं. काफ़ी रिसर्च इस पे हो चुकी है और उसके हमें नॉर्मल रेंजेस पता हैं, जबकि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन और रेडियल स्ट्रेन में उसके नॉर्मल वैल्यूज़ और उसके रेंजेस इतने वेल डिफाइंड नहीं है. नंबर 1. Number 2, there is less inter-vendor variability in case of longitudinal strain compared to circumferential and radial strain. So इसलिए for practical purposes हम जो use करते हैं that is basically the longitudinal strain, and mostly for practical purposes जो method use करते हैं that is speckle tracking. तो इमेज क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया इन स्पेकल ट्रैकिंग. सो ऑब्टेनिंग अ हाई इमेज क्वालिटी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेकल ट्रैकिंग स्ट्रेन इमेजिंग, एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द इमेज एक्विजिशन. जब भी आप कर रहे हैं स्पेकल ट्रैकिंग से मायोकार्डियल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप निकाल रहे हैं, तो आपको इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट? जो आप एपिकल 4 चैम्बर लेते हैं, 3 चैम्बर लेते हैं और 2 चैम्बर लेते हैं, इसमें जो है ना आपकी गेन सेटिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, डेप्थ मिनिमाइज होनी चाहिए ताकि फ्रेम रेट बढ़ा हुआ हो, और एपिकल व्यूज़ में फोर्स शॉर्टनिंग नहीं होनी चाहिए. अगर फोर्स शॉर्टनिंग हुई भी है तो अच्छी इमेज नहीं है, तो स्पेकल ट्रैकिंग सही नहीं हो सकेगी और जो है आपका स्ट्रेन सही नहीं निकलेगा. द अदर थिंग विच इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका जो फ्रेम रेट है दैट शुड बी 50 to 70, बिकॉज देखिए स्मॉल पॉइंट्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर आपका फ्रेम रेट कम होगा तो वो ट्रैकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. तो फ्रेम रेट शुड बी 50 to 70 टू एक्चुअली ट्रैक द स्मॉल पिक्सल्स और द जो आप स्पेकल्स हैं उनको. तो ECG गेटिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ECG गेटिंग के बगैर यू कांट डिफाइन कि वेदर दिस इज सिस्टली और वेदर दिस इज डायस्टली. तो आपने तो सिस्टली में लेना है, तो ECG गेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, and all the images should be acquired in breath hold to avoid any breathing artifacts. So ये prerequisites हैं. जब भी आप strain imaging करने जा रहे हैं तो आपको speckle tracking से आप कर रहे हैं तो आपने 3 views लेने हैं, 4 chamber, 3 chamber, 2 chamber, force shortening नहीं होनी चाहिए, gain setting अच्छी होनी चाहिए, frame rate अच्छा होना चाहिए, and जो है आपका ECG gating होनी चाहिए. ये practical points हैं, इसको अभी हम बताने की ज़रूरत नहीं है. What are the limitations of myocardial strain measurement by speckle tracking? जैसे अभी बताया, it depends on good image quality, and if the image quality is not good, suboptimal image quality है तो strain सही नहीं हो सकता. And another important point or the limitation of myocardial strain is the post-processing analysis, which is strongly vendor specific. जैसे मैंने अभी आपको बताया, longitudinal strain practically ज़्यादा यूज़ होता है because longitudinal strain के साथ वेंडर की जो वेरिएबिलिटी है वो कम से कम है, अदरवाइज वेंडर की स्पेसिफिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी लिमिटेशन है. तो इसलिए ये होता है कि अगर आप एक पेशेंट का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो आप जब भी और एक मशीन यूज़ कर रहे हैं एक वेंडर का, तो जब नेक्स्ट टाइम उस पेशेंट का करेंगे तो उसी वेंडर के सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए, बिकॉज वेंडर से वेरिएबिलिटी आ सकती है. तो अगर एक सेम पेशेंट को फॉलो कर रहे हैं तो सेम वेंडर पे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए. अगर आप 2 डिफरेंट पेशेंट्स पे कर रहे हैं तो आप डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर सकते हैं. सो रीजंस फॉर इंटर वेंडर वेरिएबिलिटी क्यों है ये? बिकॉज द डिफरेंसेस इन पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स, डिफरेंट वेंडर्स के एल्गोरिदम्स आर डिफरेंट, एंड वेंडर्स रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट आइदर एंडोकार्डियल स्ट्रेन और मिड और फुल वॉल स्ट्रेन.
तो ये भी है कि कोई वेंडर एंडोकार्डियल स्ट्रेन यूज़ कर रहा है, कोई मिड वॉल यूज़ कर रहा है, कोई फुल वॉल यूज़ कर रहा है, इसलिए भी उसमें वेरिएबिलिटी है वेंडर टू वेंडर। और दूसरा ये कि वेंडर के एल्गोरिदम्स भी डिफरेंट हैं। The problem with image quality, the frame rate, and the inter-vendor differences are even more pronounced in 3D speckle tracking echocardiography compared with 2D speckle tracking echocardiography. तो जैसे सबा ने कहा कि हम 3D पे भी speckle tracking कर सकते हैं, but उसके साथ limitations ज़्यादा हैं। So ये तो basic हो गई। What are the clinical conditions in which you can actually apply the myocardial strain? So these are the clinical conditions जो दुनिया भर में अब स्टैंडर्ड है। इन क्लिनिकल कंडीशंस पे आइडियली यू शुड अप्लाई और स्टार्ट अप्लाइंग द मायोकार्डियल स्ट्रेन इन दीज कंडीशंस। वन इज द कैंसर पेशेंट्स एंड ऑन कीमोथेरेपी, द अदर इज द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, द अदर इज द एमिलॉइडोसिस एंड द हैवपेप पेशेंट, जैसे शहबाज सरवर साहब ने डिस्कस किया। देन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इस्कीमिया पेशेंट एज वेल एज वेल्वुलर हार्ट डिजीज विच इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड। सो विल डिस्कस दैम वन बाई वन बट वेरी ब्रीफली। So सबसे पहले myocardial strain in cancer patients. So the LVEF is the most commonly used parameter for identifying the LV dysfunction before, during and after cancer therapy. अभी तक आपके पास जो डाटा है कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के साथ वो आपका EF पे बहुत ज़्यादा है, तो सारी गाइडलाइंस में EF ही यूज़ होता है। और अब अगर आप देखें जो सर्वाइवर्स हैं ऑफ कैंसर थेरेपी, उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलता है वो ये कि मायोकार्डियल टॉक्सिक इफेक्ट्स फ्रॉम कीमोथेरेपी has become a leading cause of morbidity and mortality in cancer survivor patients. So actually problem क्या है? When reduction in LVEF during chemotherapy is established, it may be too late for treatment to allow complete recovery. क्या आप उस वक्त पिक करते हैं LVEF को जब अच्छा खासा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, तो अब यहाँ पर आपकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होगी। However, the reduction in myocardial strain precedes significant changes in LVEF, and global longitudinal strain is considered the optimal deformation parameter for the detection of subclinical LV dysfunction, and global longitudinal strain has emerged as an early marker of cardiotoxicity. तो अभी आपका EF डाउन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कम हो गया है तो वो अर्ली मार्कर ऑफ टॉक्सिटी है। तो अभी इतना डैमेज नहीं हुआ तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं एक्चुअली उस स्टेज पे जाने से जहाँ पर से रिवर्सिबिलिटी नहीं है। अब ये जो गाइडलाइंस हैं अगर इनको आप देखें, सो ASC EACVI एक्सपर्ट कंसेंसस फॉर मल्टी मोडालिटी इमेजिंग एवोल्यूशन ऑफ अडल्ट पेशेंट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर थेरेपी रिकमेंडेड द यूज ऑफ ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर थेरेपी। तो ये तो अब काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस में आ गया है कि आप मायोकार्डियल स्ट्रेन, ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूज़ करें इन पेशेंट्स ऑन कीमोथेरेपी। And according to ASC EACVI consensus document, a 15% worsening in global longitudinal strain is defined as clinically significant. कि आपने प्री कीमो किया, फिर उसके बाद आपने फॉलोअप पे किया, अगर 15% का रिडक्शन है स्ट्रेन में तो दैट इज सपोज टू बी सिग्निफिकेंट। अब उसको कैसे आप कर सकते हैं? सिंपल सा एल्गोरिदम है कि आपने पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी है और या दी है आपने, और उसमें फिर आप EF देख रहे हैं। इफ़ द EF इज़ मोर देन 60% तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल EF है। इफ़ द EF इज़ लेस देन 50% फिर भी कोई मसला नहीं है बिकॉज ऑलरेडी डाउन है। बट द EF इज़ 50 to 59%, देन यू हैव टू चेक द ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ़ द ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज़ लेस देन -18 देन इट्स नॉर्मल। अगर वो 16 से 18 के दरमियान में तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 16 से भी ज़्यादा इम्पेयर्ड है तो इसका मतलब है कि LV डिस्फंक्शन है, तो उनको फिर आप कंसीडर, जैसे मैंने कहा कि 15% रिडक्शन हो रही है तो दैट वुड बी सिग्निफिकेंट। अब इसका यूज़ क्या है? तो करंटली द मेन यूज ऑफ स्ट्रेन इज टू इम्प्रूव रिस्क प्रेडिक्शन एंड स्ट्रेटिफिकेशन विद द पोटेंशियल टू गाइड कार्डियो प्रोटेक्टिव थेरेपी इन पेशेंट्स रिसीविंग पोटेंशियली कार्डियोटॉक्सिक थेरेपीज़। अभी तक विड्रॉल ऑफ कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन इन पेशेंट्स को आप एंटी फेलियर थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप उनको फर्दर वर्सनिंग से बचा सकते हैं। एंड देन ऑन्कोलॉजिस्ट कैन डिसाइड कि अभी विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। ये सिंपल सी एक एग्जांपल है, कीमोथेरेपी का पेशेंट है, कीमोथेरेपी मेरी LV देख रहे हैं आप, लुक्स नॉर्मल, लेकिन देखें स्ट्रेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। द नेक्स्ट रोल ऑफ मायोकार्डियल स्ट्रेन इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। आप सब जानते हैं LVEF इज वेरी ऑफन नॉर्मल इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स, but interestingly longitudinal strain is reduced even in early stages of the disease because in these patients myocardium is not normal।
जो आपको हाइपरट्रॉफिड मायोकार्डियम नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली हैविंग द मायोकार्डियल डिसरे एज वेल एज मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, जो आपको CMR पे पिक होती है, जिसकी वजह से द स्ट्रेन वुड बी रिड्यूस बिकॉज मायोकार्डियम नॉर्मल नहीं है. एंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली the longitudinal strain is reduced at the site of hypertrophy, commonly in the interventricular septum. Current clinical practice guidelines for hypertrophic cardiomyopathy include strain echocardiography for evaluating longitudinal function in early disease. So अब hypertrophic cardiomyopathy के patients में भी recommended है कि आप उसका longitudinal strain निकालें even in early stage when the LVEF is normal. And ये भी important है कि longitudinal function can be abnormal even before development of increased wall thickness in mutation positive family members as well. So मज़े की बात है कि जिन patients को अभी आपने declare भी नहीं किया है कि इनको hypertrophic cardiomyopathy है, उन patients में भी mutation positive में भी strain कम हो सकता है, क्योंकि इनका जो है वो मायोकार्डियम नॉर्मल नहीं है. So this is an example of a patient with hypertrophic cardiomyopathy. And यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रिड्यूस्ड है, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द स्ट्रेन, बिकॉज ये हाइपरट्रॉफिड सेगमेंट में आपको ज़्यादा रिड्यूस मिलेगा. एक और एग्जांपल है आपके सामने, एपिकल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस थिंग, लेकिन ये कि ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एपिकल हाइपरट्रॉफी है यहाँ पर. सो दिस इज़ अ यंग पेशेंट विद एपिकल हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. और जब हम इस पर स्ट्रेन करते हैं तो देखें स्ट्रेन कहाँ पर रिड्यूस्ड है, एपिकल रीजन में, ठीक है ना, जहाँ हाइपरट्रॉफीड है वही रीजन में स्ट्रेन रिड्यूस्ड है, ऑल्दो एलवी इज कम्प्लीटली नॉर्मल. ठीक है. देन कम टू द अदर इंडिकेशन ऑफ मायोकार्डियल स्ट्रेन. सो अदर इंडिकेशन, तो पहली जो हमने इंडिकेशन की बात की कीमोथेरेपी पेशेंट्स, दूसरी हमने बात की हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. द थर्ड इंडिकेशन इज डायग्नोसिस ऑफ एमिलॉइडोसिस. कार्डियक एमिलॉइडोसिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस. एंड इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि हम बहुत सारे एमिलॉइड के पेशेंट्स मिस करते हैं, बिकॉज हम उस तरह से नहीं देखते हैं एमिलॉइड को जिस तरह से देखना चाहिए. समहाउ मैं जब मेयो क्लिनिक से गया तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे आपको जो है ना कार्डियक एमिलॉइड मिलते हैं, बट उससे पहले हम कार्डियक एमिलॉइड डायग्नोज ही नहीं करते थे अपनी लैब में. जब आके देखना शुरू किया तो पता चला नहीं कार्डियक एमिलॉइड तो अच्छा खासा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेयर है. कार्डियक एमिलॉइड की डायग्नोसिस के लिए सो मैनी थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. एट्रियल एनलार्जमेंट होती है बिकॉज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, थोड़ा सा पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी होता है इसमें, wall thickness होती है, as well as valve thickness, as well as interatrial septal thickness. Sometimes there may be involvement of the right ventricle as well. But the important point is that कि myocardial strain would be काफ़ी typical होगा, would be very helpful in the diagnosis of amyloidosis. और उसकी typicalness क्या है, जैसे कि अभी शहबाज साहब ने भी बताया था, इसमें apical sparing है. ठीक है. तो apical sparing के साथ if you do the myocardial strain in this kind of patient, then it would be very helpful in making the diagnosis without any biopsy, without any cardiac MRI. You can even make the diagnosis of cardiac amyloidosis by doing the strain. मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ स्ट्रेन पे करेंगे, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स, बहुत सारे एको फीचर्स सबको कंबाइन करके जब आप स्ट्रेन करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है. एक और एग्जाम्पल है, ये शहबाज साहब के वाली सी तकरीबन एग्जाम्पल है. ये 71-year-old मैन विद वर्सनिंग डिस्निया 2 years आफ्टर कैबेज. फिजिकल एग्जाम पे JVP एलिवेशन, प्रोमिनेंट S3, पेरिफेरल एडिमा. सो कैबेज हुआ है 2 साल पहले, अभी हार्ट फेलियर हो रहा है, ऑल द साइंस ऑफ हार्ट फेलियर. किसी ने कैथ भी कर दिया तो कैथ पे पता चला कि डायस्टोलिक प्रेशर्स बढ़े हुए हैं एंड देयर इज इक्वलाइजेशन ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर्स. अब किसी ने सोचा यार इसको तो जो है कैथ भी कर लिया है, इसको तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, व्हाई नॉट डू द CT. एंड CT किया तो पता चला थोड़ी सी कैल्शियम भी आ गई पेरिकार्डियम में. अब इंटरेस्टिंगली constrictive pericarditis can occur without pericardial calcification and pericardial calcification can occur without constrictive pericarditis, so it's not diagnostic thing. ठीक है. सो डायग्नोस्टिक तो क्या है, आपके फिजियोलॉजी है कि फिजियोलॉजी कंस्ट्रिक्शन की फिजियोलॉजी है कि नहीं है. जो अभी थोड़ी देर पहले शहबाज साहब डिस्कस कर रहे थे, कंस्ट्रिक्शन की फिजियोलॉजी में E प्राइम वुड बी सुपर नॉर्मल. ठीक है. तो यहाँ पर जब एको करने वाले की वैल्यू तो कोई नहीं, कैथ वाले ने कैथ कर दिया, एको किया तो एको पे क्या पता चला, एको पे जनाब पता चला कि आपकी E वेव तो बहुत बड़ी है, बट व्हाट अबाउट द E प्राइम. E प्राइम इज वेरी स्मॉल. So E prime should not be small in case of constrictive pericarditis because that would be supernormal. वहाँ मायोकार्डियम को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कंस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है ना, तो मायोकार्डियम तो नॉर्मल है, तो E प्राइम शुड बी नॉर्मल. E प्राइम मोस्ट सेंसिटिव क्राइटेरिया अभी आप लोगों ने पढ़ा है. तो ये E प्राइम नॉर्मल है, सॉरी रिड्यूस्ड है, तो इसका मतलब है ये कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो सकता. अब क्या किया उन्होंने इसको स्ट्रेन किया. तो स्ट्रेन में क्या आ रहा है,
वही जो चेरी टॉप अपीयरेंस या एपिकल स्पेयरिंग अपीयरेंस आ रहा है, कार्डियक एमआरआई आज का हमारा टॉपिक नहीं है, बट कार्डियक एमआरआई इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक एमिलोइडोसिस विदाउट बायोप्सी. सो उसको कंफर्म भी कर लिया कार्डियक एमआरआई पे. Then come to the another indication, which is the myocardial strain in HFpEF patients. Global longitudinal strain is a very promising method to identify patients with mild systolic dysfunction, which is not reflected in reduced EF. तो HFpEF के बहुत सारे patients ऐसे होंगे जिनको हो सकता है diastolic dysfunction भी ना हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपका EF तो नॉर्मल है, बट जब आप स्ट्रेन करते हैं तो पता चलता है कि वो मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, बट वो ऐसा प्रॉब्लम है जिसने अभी तक EF को इफेक्ट नहीं किया है. तो ऑल्दो योर EF इज नॉर्मल, बट एक्चुअली द स्ट्रेन वुड बी abnormal. And a study which compared the longitudinal and circumferential global strain in patients with HFpEF to hypertensives with diastolic dysfunction without heart failure and a group of normal controls found lower longitudinal and circumferential peak strains in HFpEF patients. तो HFpEF patients में there is another role of a global longitudinal strain कि वहाँ पर आपको LVEF नॉर्मल आ रहा है और समटाइम्स इवन डायस्टोलिक फंक्शन भी नॉर्मल आ रहा है, बट इफ यू सी द स्ट्रेन दैट वुड बी रिड्यूस्ड. देन कम टू द इस्कीमिया. इस्कीमिया असेसमेंट में कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेन इमेजिंग may be applied to diagnose ischemia by showing reduction in the peak systolic strain, and LV global longitudinal strain can be used during stress echo for diagnosing ischemia. तो स्ट्रेस एको में आप वॉल मोशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं स्ट्रेन को, जो आपको पिक कर सकता है कि जी यहाँ पर स्ट्रेन इन सेगमेंट्स में रिड्यूस हो रहा है, तो देयर माइट बी इस्कीमिया देयर. ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी ले सकते हैं और सेगमेंटल भी ले सकते हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा डाटा अभी नहीं है, तो इस पर फ्यूचर के लिए एक काम हो सकता है ये. और इन्फाक्शन होगा तो इन्फाक्शन में तो आई थिंक फिर रोल इतना नहीं है, बिकॉज इन्फाक्शन में तो आप वैसे ही वॉल मोशन देख लेंगे, लेकिन इस्कीमिया असेसमेंट में ज़्यादा रोल है जो अभी तक इतना वेल डिफाइंड नहीं है, बट आगे फ्यूचर में रोल है. दिस इज़ द इवॉल्विंग फील्ड, myocardial strain in valvular heart disease. This is the most important evolving field as far as the longitudinal myocardial strain is concerned. Timing of intervention, you all know, is crucial for good clinical outcome in all valvular heart disease. कि कब आपने सर्जरी करनी है, कब आपने इंटरवीन करना है. वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में दिस इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप डिले करते हैं तो वो इरिवर्सिबल स्टेज पे चला जाता है. अभी तक जो गाइडलाइंस हैं, these guidelines actually refer to the systolic function assessment based on ejection fraction for clinical decision making. अभी तक वेल्वुलर गाइडलाइंस जितनी भी हैं उनमें EF पे ज़्यादा फोकस है या LV डायमेंशन पे, कि उनकी बेस पे यू डिसाइड विच टाइम इज़ द सूटेबल टाइम फॉर इंटरवेंशन फॉर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़. LV ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यू ऑल नो, अभी जैसे टॉक से आपको अंदाजा हुआ, इज सुपीरियर टू LVEF एज अ डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर, and it can detect early subclinical myocardial dysfunction before over deterioration of LVEF. It has the potential to become an important parameter for the management of valvular heart disease, क्योंकि ये पहले ही बता देगा. अब EF तक क्यों इंतज़ार करते हैं? अगर स्ट्रेन कम आ रहा है तो why not go for intervention? So इसका रोल फ्यूचर में यकीनन बढ़ जाएगा इन वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, और कुछ वेल्वुलर में तो आ गया है ऑलरेडी. सो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक एक दो स्लाइड. एओर्टिक स्टेनोसिस इन symptomatic severe aortic stenosis, preoperative global longitudinal strain is associated with long-term post-operative cardiac mortality and morbidity in either surgical or transcatheter aortic valve replacement. So symptomatic patient जिसमें कि आप सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं या valve replacement के लिए ले जा रहे हैं, उसमें जो preoperative global longitudinal strain है वो एसोशिएट करता है विद द लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. स्ट्रेन कम होगा, ऑल्दो EF नॉर्मल है, उनका आउटकम खराब होगा. इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स विद सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, जिसमें आप अभी सर्जरी के लिए ले जा नहीं रहे हैं, एंड नॉर्मल EF, a global longitudinal strain worse than -18 has been shown to be associated with disease progression, evidenced by symptoms onset and need for valve intervention. तो वो वाले एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिनमें सीवियर AS है, जिनको आप अभी EF नॉर्मल है, उनको अभी आप ले जा नहीं रहे, उनका जब लोगों ने स्ट्रेन किया और फिर बाद में आउटकम के साथ उन्होंने देखा, तो इन पेशेंट्स में जिनका स्ट्रेन कम था उनको जल्दी ज़रूरत पड़ी उनको जल्दी सिम्टम्स डेवलप हो गए और उनको जल्दी ज़रूरत पड़ी वैल्व इंटरवेंशन की. Current studies suggest that speckle tracking echocardiography might identify asymptomatic patients with severe aortic stenosis who would benefit from earlier intervention than recommended in recent guidelines. तो उन पेशेंट्स में पिक कर सकता है जिनको अभी गाइडलाइंस नहीं कह रही हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेन कम है, तो आप उनमें
ये हेल्पफुल हो सकता है. एंड द हार्ट वेल्व क्लिनिक इंटरवेंशनल डेटाबेस ग्रुप रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू थेरेप्यूटिक डिसीजन मेकिंग इन सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस पेशेंट्स. ठीक है. देन कम टू द एओर्टिक रिगर्जिटेशन. सो एएस वाले पे तो बहुत ज़्यादा डाटा है, एआर पे इतना नहीं है. पेशेंट्स विद एसिम्प्टोमेटिक सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड प्रिजर्व्ड एलवीईएफ who subsequently developed criteria for AVR had significantly more impaired LV global longitudinal strain at baseline compared with patients who did not develop criteria for AVR. So जिन patients को criteria develop होगा फ्यूचर में, उनका ऑटोमेटिकली पहले जो आपने देखा था स्ट्रेन वो रिड्यूस्ड होगा, उनको जल्दी डेवलप होगा क्राइटेरिया फॉर AVR. माइटल रिगर्जिटेशन में एलवी यूजुअली ईएफ हाइपरडायनेमिक होता है, और इसीलिए गाइडलाइंस में कि ईएफ अगर 60 से कम है, यानी नॉर्मल से ज़रा से ही कम है, तब भी आप जल्दी सर्जरी कर देते हैं, इंटरवीन कर देते हैं. तो पेशेंट्स कैन ऑफन डेवलप मायोकार्डियल डिसफंक्शन दैट इज ऑब्सक्योर्ड बाय अ फॉल्सली नॉर्मल और हाई एलवीईएफ इन केस ऑफ सीवियर एमआर, कि वो एलवीईएफ का आपको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता, और उनमें फिर आप यकीनन मायोकार्डियल स्ट्रेन का रोल आ सकता है. सो पेशेंट्स विद पोस्ट ऑपरेटिव एलवीईएफ लेस देन 50%, यानी सर्जरी के बाद जिनका ईएफ डाउन हो गया, हैड सिग्निफिकेंटली मोर इम्पेयर्ड प्री ऑपरेटिव एलवी ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वेयर्स देयर वाज नो डिफरेंस इन देयर प्री ऑपरेटिव एलवीईएफ. तो जिनको पोस्ट ऑपरेटिव आप देखते हैं एमबीआर के बाद ईएफ डाउन हो गया, तो उनका लोगों ने देखा कि उनका ईएफ तो जिनका ईएफ डाउन हुआ उनका बेस लाइन पे ईएफ तो ठीक था, लेकिन उनका स्ट्रेन कम निकला. So this suggests that LV global longitudinal strain can detect subclinical myocardial dysfunction in the context of a falsely hyperdynamic LVEF in severe primary mitral regurgitation. Studies evaluating clinical application of strain in mitral stenosis or right-sided valve disease are small and limited. So MS पे और right-sided valve के साथ इतना डाटा नहीं है. बस 2 स्लाइड्स आखिरी हैं. सो ग्रोइंग एविडेंस इंडिकेट्स नो डाउट्स अबाउट द फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेन इमेजिंग इन वेल्वुलर हार्ट डिजीज. क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एलवी ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन वेल्वुलर हार्ट डिजीज इज करंटली डोमिनेटेड बाय द असेसमेंट ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस पेशेंट्स. सो एएस के पेशेंट्स में काफ़ी आ गया है और फ्यूचर गाइडलाइंस में भी आ जाएगा. द रोल ऑफ एलवी ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन पेशेंट्स विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड माइटल रिगर्जिटेशन इज less well established. So this is the end of my talk. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Any questions? Sure. किस चीज़ में? वायबिलिटी में? वायबिलिटी में तो मेरा नहीं ख्याल कि मायोकार्डियल स्ट्रेन का इतना रोल है, बिकॉज मायोकार्डियल स्ट्रेन तो एलवीईएफ डाउन होने से पहले की चीज़ है. अब एलवीईएफ डाउन नहीं हुआ तो उस वक्त तक आप देख के बता सकते हैं, लेकिन जब एलवीईएफ डाउन हो जाएगा तो फिर स्ट्रेन का इतना रोल नहीं रहेगा. लेकिन अगर बहुत छोटा सा सबएंडोकार्डियल एमआई हुआ है या तो उसमें अगर आपका एलवीईएफ इतना डाउन नहीं है, वहाँ पर आप करके देख सकते हैं, तो मायोकार्डियल स्ट्रेन उसमें रिड्यूस जाएगा. आई थिंक वायबिलिटी में इतना ज़्यादा रोल नहीं है उसका. अच्छा देखिए, मसला ये है कि मायोकार्डियल स्ट्रेन जो है ना एक इवॉल्विंग फील्ड है और एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है. यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, एंड यू नो जितनी आपकी कार्डियोमायोपैथीज़ हैं उन सब में स्ट्रेन लोग यूज़ कर रहे हैं. और लेकिन जो डाटा रोबस्ट है, जो ज़्यादा डाटा है, वो उन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं. तो अगर आपको जो है पेरीपार्टम या पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी में एलवीईएफ ऑलरेडी डाउन है, तो आपको स्ट्रेन तो रिड्यूस्ड आएगा ही वहाँ पर, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरे कहने का मतलब ये है. तो इसी तरह से अगर कोई इन्फाक्टेड एरिया है तो उसका भी स्ट्रेन तो रिड्यूस आएगा ही. लेकिन ये कि फ्यूचर में ही इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में फ्यूचर में रोल आ जाएगा. जी शहबाज साहब, आपकी एक्सीलेंट टॉक. मेरे ख्याल में जो हम स्ट्रेन की क्लिनिकल एप्लीकेशंस में देखें तो एक तो ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स, और दूसरा जो आपने वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ का कहा, और तीसरा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. I remember when Dr. Tajik came about 20 years back, he said E prime
इज़ गोइंग टू बी द की। उस वक्त तो ये स्ट्रेन का जिक्र ही नहीं था कि हाइपरट्रॉफ में और उनके रिलेटिव्स में जब आप देखेंगे तो उनमें सब में ई प्राइम वुड बी रिड्यूस्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूस्ड स्ट्रेन इन ऑल रिलेटिव्स वेयर Exactly. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी Exactly. इज़ गोइंग टू डेवलप। और ऑन्कोलॉजी की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उनमें नाउ वी नो दैट विच स्ट्रेन लेवल we should continue the therapeutic agent and where we should stop. So बड़ी excellent applications हैं। एग्जैक्टली सो एक मैं सिर्फ ऐड और कर दूं कि जो मैंने अभी बताया कि एमिलॉइड में भी है कि अगर आप एमिलॉइड की डायग्नोसिस या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आप डायग्नोसिस बना रहे हैं तो उसमें भी आप कहें। यस, वेरी गुड। लेकिन ये सारी डिजीज़ काफ़ी रेयर हैं। मोर कॉमन एप्लीकेशन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, सिंपल प्लेन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया था और अबाउट 130 समथिंग पेशेंट्स, और उसके अंदर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड LVGLS आया था एज़ कम्पेयर टू EF। EF दोनों ग्रुप में नॉर्मल था, नॉर्मल एंड हाइपरटेंशन, और LVGLS गाइडेड कि ये देखें आप अगर ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाएंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका हार्ट वीक होना शुरू हो गया है। तो दिस टेल्स ऑन द पेशेंट वेरी वेल। इसी तरह से डायबिटिक के अंदर एक सवाल पीछे से हुआ था, लेट मी आंसर दैट ऑल्सो, कि कार्डियोमायोपैथी पेरिपार्टम तो नहीं बट इन जनरल कार्डियोमायोपैथी में एक जैक के अंदर लेटेस्ट अभी एक पेपर आया है एंड दे हैव, जाहिर बात है EF तो कम हो गई, LVGLS भी ऑब्वियसली कम होगा, बट दे हैव गिवन ए कट ऑफ पॉइंट ऑफ -14% फॉर प्रोग्नोसिस, कि जिनकी -14% या उससे कम है दे हैव गॉट बैड प्रोग्नोसिस 2 ईयर, और जिनकी इससे ज़्यादा है तो हैव गॉट गुड प्रोग्नोसिस। गुड, थैंक यू। तो बेसिकली आई थिंक इस टॉक का पर्पज़ ये था कि अगर हम अभी तक बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेन नहीं करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सिंपल हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, आपको स्ट्रेन करना आ जाए एको पे, तो फिर आप उसको क्लिनिकली बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने बताई हैं चीज़ें, कुछ आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये तो रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और कुछ सालों पहले तक तो स्ट्रेन था ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास भी एको मशीन है और उस पर स्पेकल ट्रैकिंग है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। थैंक यू।